Good morning, dear students. In the previous class, we have completed the topic of carbohydrates. We have discussed different types of carbohydrates, in which we have discussed that the monosaccharides and the oligosaccharides are considered to be micromolecules, whereas the polysaccharides are considered to be the macromolecules. Now we are moving on to the next organic micromolecule, and that is amino acids. So amino acids are obtained in the acid soluble fraction while we perform chemical analysis. They are found in acid soluble fraction because the size of the amino acids is very small and they have lower molecular structure, lower molecular weight, and therefore simpler molecular structure, due to which they are being considered in the micromolecules. Amino acids are the basic unit of proteins. मतलब amino acids के combination से proteins बनते हैं. तो जो proteins हैं उन्हें हम macromolecule में consider करते हैं, जबकि amino acids को हम micromolecule में consider करते हैं. So when we talk about amino acids will be having relatively simple structure, but there are different types of amino acids. But every amino acid will be having at least the presence of an amino group and the presence of the carboxylic group. So there are two such structures, that is amino group and carboxylic group, present in structure of every amino acids. So amino acids are organic compounds, and these organic compounds will be having, they possess at least one. Okay, so we can mention that some of the amino acids have even more than one amino group. Some of the amino acids have even more than one carboxylic group. So they will be possessing an amino group. They will be possessing an amino group. Secondly, they will be having a carboxylic group. Okay, so amino acids are organic compounds. They are having one amino group and at least one carboxylic group. Along with this, when we talk about amino group and carboxylic group, the amino group will be giving a basic nature to the proteins, means to the amino acid, whereas the carboxylic group is going to contribute to the acidic nature of the amino acid. मतलब amino acids जिनमें एक basic group और एक carboxylic group होता है, वैसे amino acids को neutral amino acids कहा जाता है. पर ऐसे amino acids जिसमें amino group ज्यादा हो, right, more than one amino group हो, तो उन्हें बेसिक एमिनो एसिड्स कहा जाता है. और ऐसे एमिनो एसिड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है उन्हें एसिडिक एमिनो एसिड्स कहा जाता है. सो एमिनो एसिड्स कैन बी आइदर बेसिक एमिनो एसिड्स, एसिडिक एमिनो एसिड्स और इवन न्यूट्रल एमिनो एसिड्स. मतलब अलग अलग तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं और इन्हीं एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से, कंबाइन होने से, पॉलीमराइज होने से प्रोटीन्स बनते हैं. सो नेक्स्ट वी नीड टू डिस्कस दैट along with these two also there is the presence of the specialized group. मतलब यहाँ पे इनके साथ साथ there is presence of an R group. An R group over here stands for an alkyl or any hydrocarbon, right? That hydrocarbon can be either methane, it
it can be hydroxymethane, it can be a ring structure, it can be an aromatic compound, anything, right? ये जो R होता है वो काफी वेरिएबल ग्रुप होता है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या सिंपल एक हाइड्रोजन भी हो सकता है, या तो हाइड्रोक्सीमिथाइल भी हो सकता है, या मीथेन ग्रुप भी हो सकता है। एनी ग्रुप कैन बी प्रेजेंट इन दिस R group. And lastly, there is presence of hydrogen. So over here, when we talk about the amino acid, the centrally there will be a carbon. On one side there will be an amino group, as we said. On the another side we will be having the carboxylic group. We will be having a hydrogen and R. This will be the basic structure of an amino acid. So we can say that amino acids are substituted methanes because the 4 valencies of the carbon are being occupied by 4 different groups: hydrogen, amino, R group and carboxylic group. So amino acids are substituted methanes. Amino acids are substituted methanes, and the carbon is known as alpha carbon. मतलब जिस कार्बन पे एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन ये सब अटैच्ड है, उस कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। हम क्यों से अल्फा कार्बन कहते हैं? बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जो सेंट्रली लोकेटेड कार्बन है जिसपे सब जगह पे ग्रुप्स अटैच्ड हैं, उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। आप देख लीजिए, एमिनो एसिड्स ऑर्गेनिक होते हैं बिकॉज दे आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट? तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। एमिनो एसिड्स में एक होता है एमिनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमिनो ग्रुप जो होता है उसका बेसिक नेचर होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एसिडिक नेचर होता है। इसलिए ऐसे एमिनो एसिड्स को न्यूट्रल कहा जाता है जिनमें एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अगर एक से ज्यादा एमिनो ग्रुप्स हैं तो वो बेसिक एमिनो एसिड बनता है, और अगर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो एसिडिक एमिनो एसिड बनता है। इन दोनों के अलावा देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन R ग्रुप। ये R जो है इट कैन बी एज सिंपल एज हाइड्रोजन, बट इट कैन बी कॉम्प्लेक्स लाइक एन एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर, राइट? यहाँ पे R की जगह पे हाइड्रोजन, या तो कोई मीथेन, या तो कोई और ग्रुप, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, एंड the hydrogen will be present at the 4th position. So this is the basic structure of an amino acid. The carbon to which the carboxylic group will be attached will be known as the alpha carbon. So there is an alpha carbon to which this group is going to be, all these groups are going to be attached. Now another thing is that the nature of an amino acid depends upon this R group, okay? The nature and property of amino acid depends upon the R group। एक एमिनो एसिड है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, राइट? सॉल्युबिलिटी है, या डिफ्यूजन है, या पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन है, या किसी के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी है, ये सारी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? R group पे। So all the changes or all the reactions that amino acid is going to undergo, that depends upon this R group. So R group मैंने अभी कहा it can be as simple as hydrogen. It can be as simple as a hydrogen. यहाँ पे R group की जगह पे क्या है? Hydrogen. तो such amino acid will be known as glycine. जहाँ पे R ग्रुप जो है उसकी जगह पे अगर सिंपल हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो ऐसे अमीनो एसिड को क्या कहा जाता है? ग्लाइसिन।
ओके, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अमीनो एसिड में there is presence of CH3, ऐसे अमीनो एसिड को कहा जाता है एलेनाइन। ऐसे भी अमीनो एसिड्स होते हैं जहां पे हाइड्रोक्सी मिथाइल हो, CH2OH, तो इसे कहा जाएगा सेरीन। कहने का मतलब ये है कि R ग्रुप जैसे जैसे चेंज होगा वैसे एमिनो एसिड्स के नाम जो है वो अलग होंगे। एमिनो एसिड्स विल बी हैविंग डिफरेंट नेम्स on the basis of what? On the basis of this R groups. Okay, so that is what is the basic structure of an amino acids. Now till the time there are 20 amino acids which have been found to be present in proteins. वैसे तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, पर उनमें से सारे ही अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स में प्रेजेंट नहीं होते। तो जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन में प्रेजेंट है वैसे सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स है। सो वी विल मेंशन दैट देयर आर 20 such amino acids that are present in proteins, and these amino acids are known as protein amino acids. प्रोटीन एमिनो एसिड्स, क्योंकि हमने जितने भी प्रोटीन, जैसे कि इंसुलिन है तो वो एक प्रोटीन है, राइट। ग्लाइकोज वी आर हैविंग द हार्मोन लाइक ग्लूकागॉन, वो भी एक प्रोटीन है। एंजाइम्स हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम ले लो, अमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, एनी एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो प्रोटीन्स हमने पहले ही कहा कि प्रोटीन्स किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से, राइट। तो ऐसे कितने प्रोटीन, कितने एमिनो एसिड्स हैं? 20 एमिनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में देखे जाते हैं, और ऐसे 20 एमिनो एसिड्स को हम प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड्स कहते हैं। एमिनो एसिड्स आर इवन there are some amino acids which are not found in proteins. Okay, there is presence of even non-protein amino acids. There is presence of even non-protein, मतलब ऐसे amino acids जो प्रोटीन में नहीं होते, राइट। तो उनका कोई अलग ही रोल होता है बॉडी में। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ऑर्निथिन और सिट्रुलिन जो है दे आर अ पार्ट ऑफ यूरिया साइकिल। जो हमारी बॉडी में यूरिया बनने की प्रोसेस होती है, राइट। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, प्रोटीन्स हैं, उनके ब्रेकडाउन से एंड प्रोडक्ट यूरिया बनती है, और ये यूरिया जो है वो हम थ्रू द यूरिन रिमूव करते हैं। यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। तो ये जो यूरिया का फॉर्मेशन है उसमें दो ऐसे अमीनो एसिड्स इंक्लूडेड है जो कोई भी प्रोटीन में नहीं है। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन में नहीं है वैसे अमीनो एसिड का एग्जांपल है ऑर्निथिन और सिट्रुलिन। इसके अलावा गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, गाबा, is a type of neurotransmitter. It is a type of neurotransmitter. ये भी एक ऐसा ही अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में नहीं होता पर न्यूरोट्रांसमीटर, राइट, जो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक केमिकल सब्सटेंस पास करके इंपल्स कंडक्ट करता है। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनके जो एमिनो एसिड्स हैं वो नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि there are some amino acids which are found in proteins and there are some amino acids which are not a part of proteins. जो प्रोटीन्स में है उनमें हम क्या कहते हैं? प्रोटीन एमिनो एसिड्स, और जो प्रोटीन्स में नहीं होते उन्हें हम कहते हैं नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स एंड अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड्स।
So as we said that amino acids will be having an amino group, a carboxylic group, a hydrogen and an R group. The carbon will be known as the alpha carbon, and about 20 amino acids are there which are found in proteins. That is, they make up the protein. Such amino acids are proteinaceous amino acids, whereas there are some amino acids which are not found in any proteins, and such amino acids are having a different role in some biosynthetic pathway, some making of antibiotics or some neurotransmitters like gamma aminobutyric acid. So now next we talk about the types of amino acids. So amino acids are of various types, out of which some of them we are discussing. For example, neutral amino acids. जब हम न्यूट्रल एमिनो एसिड्स कहते हैं तो ये ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनके पास एक एमिनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब एक बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है, जिसकी वजह से इन्हें न्यूट्रल कहा जाता है। तो बेसिक और एसिडिक दो ऐसे ग्रुप्स हैं, दोनों ही ग्रुप्स होने की वजह से न्यूट्रल एमिनो एसिड्स जो हैं दे इंक्लूड ग्लाइसिन, एलेनाइन, valine, leucine and isoleucine. So these are glycine, alanine, valine, leucine और isoleucine, ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हम न्यूट्रल कहते हैं। अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो ऐसे अमीनो एसिड्स में एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है पर एक ही एमिनो ग्रुप होता है, मतलब एसिडिक ग्रुप्स ज्यादा हैं, इसीलिए ये एसिडिक एमिनो एसिड्स हैं। जैसे कि एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामिक एसिड, glutamine and glutamic acid. Okay, so aspargine, aspartic acid, glutamine and glutamic acid, इन सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होता है, एक से ज्यादा, इसीलिए ये सारे एसिडिक हैं। जबकि एक कार्बोक्सिलिक और एक एमिनो ग्रुप होता है तो वो एमिनो एसिड्स न्यूट्रल होते हैं। थर्ड, देयर आर इवन बेसिक एमिनो एसिड्स। तो बेसिक एमिनो एसिड्स मतलब जिनमें एमिनो ग्रुप ज्यादा है, राइट? सो दोज एमिनो एसिड्स विद मोर एमिनो ग्रुप विल बी लाइसिन एंड आर्जिनिन. Lysine and arginine are known to be the basic amino acids. अगर हम सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, मतलब एमिनो एसिड्स जिसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, ऐसे एमिनो एसिड्स भी होते हैं जिनमें इंक्लूड होता है सिस्टीन एंड मीथियोनाइन. Students, this question has been asked for many times that mention the name of sulfur containing amino acid. तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिस्टीन एंड मीथियोनाइन. नेक्स्ट कैन बी अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स. अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, तो ऐसे एमिनो एसिड्स जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसमें आएगा सेरीन एंड थ्रियोनाइन. सेरीन एंड थ्रियोनाइन ये दोनों ही ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनमें से एक का स्ट्रक्चर हमने देखा था, राइट? इंस्टेड ऑफ R ग्रुप देयर वाज प्रेजेंस ऑफ CH2OH. तो ऐसे एमिनो एसिड्स जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप आता है वो अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, फिर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स. तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में आप फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन. फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन आर एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स. इन एमिनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक और एमिनो ग्रुप तो है ही, एडिशनल जो R ग्रुप है वहां पे इनमें से कोई अलग सा एरोमेटिक सब्सटेंस, एरोमेटिक ग्रुप होगा तो
मेंशन किए हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज ionizable nature. Ionizable nature of amino acids. अब एमिनो एसिड्स का आयोनाइजेबल नेचर मतलब जब एमिनो एसिड्स को अलग अलग सॉल्यूशंस में जिनका पीएच अलग है उसमें रखा जाए, if the amino acids are present in the solutions having different pH, the nature of amino acid is going to change. So amino acids if placed in solutions with different pH, they act differently. मतलब अलग अलग pH सॉल्यूशन में एमिनो एसिड अलग तरह से एक्ट करेंगे। मतलब pH अगर चेंज होगा तो एमिनो एसिड का नेचर भी यहाँ पे चेंज होगा, राइट? एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड at which it has equal number of positive and negative charges is known as Zwitter ion, and this is the most important question which is being asked for many times, right? अब देखिए मैं क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर, if I am drawing the structure, now here you can see that what I have done is that if it is placed in a solution, right? अगर एसिडिक सॉल्यूशन है जिसका pH कम है या ऐसे सॉल्यूशन जिसका pH बहुत ही ज्यादा है, तो एमिनो एसिड्स जो है here it is found in which form? NH3+, right? Here it is found in NH3+ also and COO- also. Here it is only CO-. So at one place it is acting as a cation and at one place it is acting as an anion. Whereas the intermediate form, matlab at a pH of nearly 6.2, amino acid will be showing both these anion and cationic form. मतलब अगर एमिनो एसिड्स को नियरली 6 pH पे रखा जाए तो इनमें बोथ एमिनो ग्रुप और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है that will be found in a changed state, and such a condition is known as Zwitter ion. It is known as Zwitter ion. So on one side you can see the cationic group, on one side you can see the anionic form, but at a pH of 6 ये कैसा देखने को मिलता है? It will be observed that both amino and carboxylic group will be changed, and this structure is known as the Zwitter ion, and it is the special property of amino acids. This changes which are observed, मतलब अलग-अलग solution में रखा गया तो अलग-अलग nature देखने को मिला। तो ये जो है यहाँ पे उसने हाइड्रोजन आयन को गेन किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को लूज किया है। तो ऐसे जो चेंजेस है वो क्यों देखने को मिलते हैं? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पीएच सॉल्यूशंस जिनमें पीएच अलग था, राइट? सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दूसरी एक चीज है कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस, प्लांट्स आर एबल टू synthesize all the amino acids, मतलब जितने भी amino acids हैं वो प्लांट सारे synthesize कर सकते हैं, but animals depend upon plants for the amino acids. तो ये जो amino acids हम नहीं बना सकते, मतलब जिसके लिए हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, जिसके लिए हम फूड खाते हैं, वी टेक इट इन आवर डाइट, तो ऐसे एमिनो एसिड्स को एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहा जाता है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स। और ऐसे 7 एमिनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल है। क्या कह रही हूं मैं?
plants जो है they are able to make up all the amino acids on their own, but animals they are dependent upon the plants for the amino acids, right? तो animals में out of 20 7 ऐसे amino acids हैं जो हम नहीं बना पाते, और हम नहीं बना पाते इसीलिए हम वो amino acids कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स में से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऐसे एमिनो एसिड्स को क्या कहा गया है? एसेंशियल एमिनो एसिड्स। सो एमिनो एसिड्स व्हिच आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी आर द एसेंशियल एमिनो एसिड्स। नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी आर द एसेंशियल एमिनो एसिड्स, and that have to be taken through the diet. So this was all about the amino acids, and in the next class we will talk about the proteins, क्योंकि एमिनो एसिड जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल है और एमिनो एसिड के कंबाइन होने से प्रोटीन्स बनते हैं which is the macromolecule. So we will be discussing the macromolecules in the next lecture.